morning, all of you. How are you? Good? So, I hope you all are ready to complete our previous journey. Are you ready? So, let's come with Shara. So, previously we read about harmful microorganisms. So, microorganisms, how they are harmful for us, we learn some point. So, now get ready to learn one point, that is food poisoning. So, what is food poisoning? So, it has happened due to the consumption of spoiled food by the microorganism. Okay, so as we take one example, that it is anywhere it is some leftover food. So in that food the microorganism are grow, okay, and they produce some toxic substance on the food, and that make food poisonous. So if one can eat this food, they have vomiting, illness, serious illness, as even it takes some serious condition, even it is happening death also. Okay, so क्या करना चाहिए, फूड को हमेशा प्रिजर्व करके रखना चाहिए, ढक के रखना चाहिए, और बाहर का जंक फूड कभी नहीं खाना चाहिए. ओके, सो दैट इज फूड पॉइजनिंग. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज फूड प्रिजर्वेशन. What is food preservation? In this we learn how we preserve our food. Okay, food को कैसे बचा के रखा जाता है, कैसे संभाल के रखा जाता है. तो food is preserved by two method. One is physical method and the second one is chemical method. Okay, so now come to the topic briefly, that is chemical method. Okay, so in chemical method we learn how we use some chemical substances to preserve our food. Okay, so now the first note in this point, that is preservatives. So what are preservatives? Preservatives are help to preserve our food. Okay, so like some edible oils, some common salts are जिन्हें हम फूड में डालते हैं, to check the growth of microorganisms, so that they are called preservatives. Okay, so now common salt and edible oils, we are used these two substances in making pickles, so that's why they are checked, they are prevent the growth of microorganisms. So now come to the next point in the chemical method. So how chemically we preserve our food? One is common salt, vinegar also, so sugar also. Okay, so now come to the point, that is common salt. So how the help of common salt we preserve our food? Common salt is used to preserve meatballs and fishes फॉर मैनी एजेस. मतलब इसमें क्या होता है कि कॉमन सॉल्ट को, मतलब हमने देखा होगा कि सबसे पहले जो मीट बॉल्स इनको हम करके रखते हैं, इसमें हम कॉमन सॉल्ट लगाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साल्टिंग. ओके, तो इस प्रोसेस को, जिसमें कि साल्ट को उनके ऊपर लगाना, तो इस प्रोसेस को कहते हैं साल्टिंग. ओके, सो साल्टिंग इज ऑल्सो यूज्ड इन रॉ मैंगोज, आंवला एंड सम अदर थिंग्स. ओके, तो क्या करते हैं, मैंगोज में आप लोगों ने देखा होगा, जो घरों में हम अचार डालते हैं, मेकिंग पिकल्स, तो हम क्या करते हैं कि मैंगो को छिलके उसे धूप में सुखाने से पहले उसमें नमक लगा देते हैं, सो दे प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, जो बैक्टीरियाज माइक्रो उनके ऊपर बैठते हैं, ये उसे प्रिवेंट करते हैं. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज विनेगर. वी यूज विनेगर in the pickles. Okay, so how we use vinegar is used to prevent the spoilage of bacteria. Okay, so why? Because bacteria cannot live or grow in that environment. But vinegar is also used in many ways, that is in vegetables, in fruits, and in some meatballs, fishes, and non-veggies. So they prevent the spoilage, the growth of bacteria. So now come to the next topic, that is sugar. ठीक है, हम लोगों ने कॉमन साल्ट के बारे में तो पढ़ लिया कि नमक कैसे रोकता है, बट शुगर, मीठी चीज़ों को बचाना भी ज़रूरी है. अगर मीठी चीज़ों को नहीं बचाएंगे तो एनवायरनमेंट में बहुत असर पड़ सकता है, हम लोगों के ऊपर भी बहुत असर पड़ सकता है. सो फॉर दिस, what
वी व्हाट द कंपनी कैन, मतलब कि कंपनी वाले क्या करते हैं, ठीक है। सो कॉमन जो शुगर होता है, शुगर इज यूज्ड इन द जेलीज, इन चॉकलेट्स एंड इन सम अदर एडिबल थिंग्स। सो दे रिड्यूस द मॉइस्चर, जो मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर को सब वो रिड्यूस कर लेता है एंड दे प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ओके, सो दिस वर्क ऑफ शुगर इज डन। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फिजिकल मेथड। सो फिजिकली हम घर पे रहकर किस तरीके से प्रिजर्वेशन कर सकते हैं अपने फूड की। वन कैन डू द फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज हीट एंड cold treatment. So what we can do in heat and cold treatment? So as you observed, as you can see that your mother boiling the milk before it is used, ठीक है। यूज करने से पहले उसको हीट किया जाता है। सो क्यों किया जाता है ये? बिकॉज those microorganism are grow in this milk, they prevent, okay, वो मतलब वहाँ पर खत्म हो जाए। जो ग्रो करना अगर स्टार्ट भी कर रहे होंगे या कोशिश ऐसी हो रही होगी तो वो वहीं पर खत्म हो जाएगी, ठीक है। एंड आफ्टर दैट बॉइलिंग करने के बाद उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाता है, बिकॉज उससे भी जो माइक्रोब्स ग्रो होने वाले होते हैं वो वहीं पे प्रिवेंट हो जाते हैं। एंड इन दिस वन प्रोसेस इज देयर, दैट इज पास्चराइजेशन। सो व्हाट इज पास्चराइजेशन? इन द प्रोसेस पास्चराइजेशन, एज यू कैन सी, आप लोगों ने ध्यान कभी दिया है इस तरीके की चीज को, दैट मिल्क जो होता है, बाहर से जो दूध आता है, वो पैकेट्स में इतनी देर तक सेव कैसे रह सकता है? कोई माइक्रोब्स उसमें ग्रो क्यों नहीं होते, वो कैसे खराब नहीं होता है? सो हियर वन प्रोसेस कैन बी डन बाय द वर्कर्स बिफोर इट्स पैकेजिंग, एंड दैट्स pasteurization. So what is happen in pasteurization? They can boil the milk in 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds, and after that quickly they store this milk in the, मतलब वो उसे क्या करते थे, स्टोर करके रख देते रेफ्रिजरेटर में, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पास्चराइजेशन, एंड दिस प्रोसेस इज डन बाय लुईस पास्चर। ओके, सो इससे क्या होता है, द माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स इसमें ग्रो करने वाले होते हैं वो उसी टाइम रिड्यूस हो जाते हैं, यानी कि प्रिवेंट हो जाते हैं। ओके, सो दिस इज हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? ओके, सो नाइट्रोजन, एज वी ऑल नो कि नाइट्रोजन जो है हमारे सॉइल में होता है, हमारे प्लांट्स के लिए हेल्प करता है। नाइट्रोजन जो गैस होती है, तो नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए कुछ माइक्रोब्स यूज होते हैं। सो एज यू मे लर्न समथिंग अबाउट बैक्टीरियम और राइजोबियम इन योर प्रीवियस क्लासेस। सो व्हाट आर दे आर द जो माइक्रोब्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन के फिक्स में हेल्प करते हैं। ओके, सो दे आर प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ, ठीक है, जो जड़ होती है वहां पर ये प्रेजेंट रहते हैं, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। सो व्हाट आर लेग्यूमिनस प्लांट्स? लेग्यूमिनस प्लांट्स आर जस्ट लाइक सम पल्सेस, पी, ग्राम एटसेट्रा। ओके, सो जिनके फ्रूट्स को हम स्टोर करके रखते हैं उन्हें लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। तो ये जो है हमारी जो गैसेस वगैरह होती हैं, नाइट्रोजन गैस जो होती है उसे हमारे सॉइल में फिक्स करके रखता है, उन्हें कहते हैं नाइट्रोजन, उसमें कहते हैं, उस प्रोसेस में कहते हैं, ये हेल्प करते हैं। तो ये होती है हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट्स नाइट्रोजन साइकिल। What is nitrogen cycle? As you all know, nitrogen is the gas which consists a large amount in our atmosphere. Okay, so nitrogen consists 78% in our atmosphere. It is the constituent which is present in all living organisms as the part of protein, nucleic acids and vitamins, etc. Okay, as in plant chlorophyll also. Okay, so plants and animals, as you can see the nitrogen cycle in the picture. Okay, so this nitrogen cycle is work, that is, as we all know, plants और animals जो है वो directly नाइट्रोजन गैस जो है नहीं ले सकते हैं। ओके, सो बीच में क्या आ जाते हैं, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो बाय द हेल्प ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक blue green algae,
राइजोबियम एंड सम बैक्टीरियम ऑल्सो। ओके, तो इनकी हेल्प से नाइट्रोजन जो है वो हमारी बॉडी में जाता है, सभी प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी में। सो कैसे जाता है देखिए, तो नाइट्रोजन, अब सॉइल की बात आती है, सबसे पहले प्लांट्स में जाता है। इस साइकिल को ध्यान से देखिएगा, तो प्लांट्स जो है, बैक्टीरिया जो है वो फिक्स करते हैं सॉइल को, नाइट्रोजन में सॉइल में नाइट्रोजन को इस तरीके से फिक्स करते हैं जिससे कि बाय द रूट्स जो है वो प्लांट्स के अंदर जाता है एज अ प्रोटीन। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, एनिमल्स जो है वो फीड करते हैं प्लांट्स को। एनिमल्स आर फीडिंग द प्लांट, ठीक है, एंड दे कैन गेट protein by these plant, and we all living organism, we all human beings can eat these plant and fruits, vegetables and some animals things। okay, तो animals जो खाते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, या फिर by the milk we know प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में जाता है। वाइटामिन, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें जो है वो लिविंग हम लोगों की बॉडी में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया कि हम लोगों के पास आ गया प्रोटीन, वाइटामिन। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा वेस्ट, प्लांट और एनिमल्स का वेस्ट जो होता है, हमारा जितना भी वेस्ट होता है वो सब क्या होता है, बाय द बैक्टीरियम यूज, बैक्टीरिया से जो यूज किया जाता है, दैट मेक्स एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, तो फिर वो एक नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है। फिर क्या होता है, जो कि हमारे प्लांट्स के ही काम आता है, एंड उसी में से जो हाफ थिंग होती है, बैक्टीरिया जो है वो उसे इस तरीके से चेंज करते हैं जिससे कि वो वापस से एटमॉस्फेयर में चले जाता है नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन गैस बन के। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वापस से फिर वही प्रोसेस घूमती है। तो इनसे क्या होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है तो इसका जो परसेंटेज है वो ना ही लेस होता है ना ही इंक्रीज होता है। ओके, दे डोंट गेट लेस एंड इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ परसेंटेज इन द एटमॉस्फेयर। सो दिस इज आवर नाइट्रोजन साइकिल। इसी तरीके से पूरा जो मूवमेंट है वो स्टार्टिंग, शुरुआत भी हम इसे हुई और लास्ट में वापस से वो नाइट्रोजन ऊपर एटमॉस्फेयर में गया, उसके बाद नीचे वापस से वही प्रोसेस स्टार्ट हो गई। सो ये है हमारी नाइट्रोजन साइकिल। सो नाउ दिस चैप्टर इज finished. So if you like this video, please hit a like button, share and subscribe also, and don't forget to press the bell icon, and always be with Shana's family. Thank you.